that was taken out brings to a close the voting in 3 of those 5 states. Mizoram is over, Chhattisgarh is over, Madhya Pradesh is also done. On India Upfront, though, we are going to focus on the 320 seats across 2 of these states, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. 70 seats in the tribal state, and all 230 from MP saw voting today. These seats are important, not just for the results that they are going to throw up on the 3rd of December, but for the message that they are going to give for 2024. Now, before you dismiss this as poll punditry, I'll tell you why I say so, why Madhya Pradesh and Chhattisgarh results are going to give a definitive message. Here's what sets these 2 states apart. Both don't have a very large population of Muslims. In fact, in Madhya Pradesh, Muslims make up about 6.57% of the population, and it's a mere 2% in Chhattisgarh. In fact, you'd be interested to know that the Christian population in Chhattisgarh is almost as much as the Muslim population, just about 2%. So polarization, communalism isn't an overarching and a statewide theme. In fact, leaders of both parties in both states are at pains to talk about Hinduism and Hindutva. Bhupesh Baghel and Kamal Nath profess themselves to be as big Hindus as Shivraj Singh Chauhan and Raman Singh. They're all very used to going to temples. They announce schemes for places of worship. Many temples have been renovated. Statues of Bhagwan Ram and Hanuman have been put up by leaders of both parties. Now, both these states also have a very large population of backwards. An estimated 45% in Chhattisgarh and about 50% OBCs in Madhya Pradesh. So does the whole issue of caste census really have any resonance in poll season? Madhya Pradesh and Chhattisgarh could tell us that. And finally, both these states have a large chunk of beneficiaries. A number of yojanas have been announced and carried out both by the Shivraj government and by the Baghel government. How do beneficiaries vote? And among the beneficiaries, how do women vote? Those messages are going to come out of both of these states. Joining us today to help us analyze these 2 states and the message that we will take from them is Shazia Alvi, spokesperson for the BJP, senior journalist Harshvardhan Tripathi, senior journalist Vinod Agnihotri, Maluk Nagar, member of parliament in the Lok Sabha of the Bahujan Samaj Party, Sumaya Rana of the Samajwadi Party, and political analyst Lokesh Jindal, who usually supports the Congress. Before we go any further, I want to tell you what the latest voter turnout is in both of these states. In Chhattisgarh, the voting turnout is 68.15%. And in Madhya Pradesh, provisionally right now, it is at 71.56%. So you can be certain eventually it is going to turn out to be about 75-76%, almost equal to what it was in the last election. Now let's start with the caste matrix of Madhya Pradesh. Like I said, a massive population of OBCs, 51% OBCs in Madhya Pradesh. Scheduled tribes is the second largest, which is 21%, and scheduled castes are 16%. General population is just about 13.7%. So a big OBC population. Let me start with the non-political voices. विनोद जी, क्या आपको लगता है कि OBC जो कास्ट सेंसस है, OBCs का कितना इसमें दबदबा होगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से हमें पता चल जाएगा. Also very important that in both states, Chhattisgarh and MP, you have OBC chief ministers. CM भी OBC है, मुद्दा भी OBC है, सबसे ज्यादा population भी OBC है. Yeah, of course, OBC has a large share of the population in both states, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. But these elections are the local elections. और लोकल इलेक्शंस में हमेशा आप देखिए जो लोकल मुद्दे होते हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं. और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार का जो कामकाज रहा उस पर कांग्रेस ने वोट मांगा. ठीक है, जाति जनगणना उन्होंने उसमें जोड़ा, लेकिन मुख्य फोकस उनका था व्हाट दे हैव डन फॉर द ट्राइबल्स, फॉर फार्मर्स, फॉर विलेजेस, रूरल, सारा उसके लिए किया. लेकिन वही मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार के ऊपर कुछ आरोप लगाते हुए अपनी गारंटियां प्रस्तुत की. पिछड़ों का मुद्दा उठाया जरूर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने लेकिन वो मुख्य मुद्दा नहीं था. दैट वाज नॉट अ कोर इशू इन द इलेक्शन. कोर इशू लोकल इशूज ही थे. और मध्य प्रदेश में मेन इशू ये था कि शिवराज सिंह, मतलब बीजेपी जिसको लीड शिवराज सिंह कर रहे थे, भले ही उनको घोषित नहीं किया गया, उनको बहुत बाद में फ्रंट पे लाया गया, लेकिन एक तरह से वही लीडर थे उस पूरे कैंपेन के लोकल लेवल पे, कि
उनकी बात मानी जाएगी, उनकी लाडली बहना योजना काम करेगी, या जो कांग्रेस गारंटी दे रही वो काम करेगी, और कमलनाथ उसका फेस थे। सेम विद छत्तीसगढ़, वहां भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी ने भ्रष्टाचार का एक मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की। महादेव ऐप को लेकर प्राइम मिनिस्टर ने काफी एग्रेसिवली बोला वहां पर, लेकिन चूंकि इतना लेट हो गया था, ये सारे इश्यूज जब बनते हैं करप्शन का, थोड़ा इसके लिए 6 महीने 7 महीने चाहिए। बट छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुत देर से जागी, आप कह सकते हैं। आपको लग रहा है कि महादेव का कुछ माहौल नहीं बना? मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दे जब अचानक चुनाव के टाइम आते हैं तो वो माहौल नहीं बनता। अगर उनको पहले से रखा, जैसे बोफोर्स का इशू बहुत लंबे समय तक वीपी सिंह ने उठाया तो मुद्दा बना, 2G का जो है काफी पहले 2012 से ही शुरू हो गया था, 13 से, उसके बाद करप्शन का, तो या कर्नाटक में 6-7 महीने से 40% का इशू कांग्रेस ने उठाया था। तो इसलिए अचानक जब ये मुद्दे आते हैं तो उतना अफेक्ट नहीं डालते, उतना प्रभाव नहीं डालते जितना कि लोकल इश्यूज डालते हैं। ओके, हर्षवर्धन जी, ओपनिंग कमेंट्स, डू यू सी कि कोई हवा बन रही है ओबीसी कास्ट सेंसस को लेकर के? बिकॉज इतना मेजर वोट बैंक है, इससे कुछ फायदा होगा कांग्रेस को या बीजेपी को नुकसान? नहीं, मुझे नहीं लगता पद्मजा, और इसकी बड़ी साफ सी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई विशुद्ध ब्राह्मण बनिया पार्टी नहीं रह गई। और ये ओबीसी की बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश में सबसे बड़े पद पर ओबीसी का एक व्यक्ति बैठा हुआ। मुझे लगता है यहां कांग्रेस पार्टी शायद गलत खेल रही है और यहां उसका नुकसान होगा। अभी ये राज्य तो ऐसे थे जिसमें भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई था नहीं, लेकिन दूसरे राज्यों में जब जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी को तो उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास लीडरशिप भी है, उसके पास प्रोग्राम भी है, उसने डिलीवर करके दिखाया है, उसने हर वर्ग को सब कुछ दे के दिखाया है। लेकिन कांग्रेस का संकट होगा, बैगेज उसका बहुत बड़ा है, बहुत विरोध उन लोगों ने किया है, जो अलग अलग समय पर राजीव गांधी से लेकर और यहां तक कि जो सोनिया गांधी जी, जिनको मैं बार बार कहता हूं कि सुपर पीएम के तौर पर रही, उस वक्त भी उन्होंने नहीं किया। और ओवरऑल अगर हम कहें तो जो क्षेत्रीय दल, जो विशेष करके ओबीसी पॉलिटिक्स वाले हैं, वो पैदा ही कांग्रेस के विरोध में हुए, ये मूल बात। अब दूसरी जो बात है, इन विशेष करके अगर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, देखिए ये बिल्कुल सच है, विनोद जी की बात से मैं लगभग सहमत हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये कैंपेन पहले चलाई होती, अब ठीक है कुछ लोगों को असर करेगा, थोड़ा सा भिलाई में, दुर्ग में, रायपुर में, शहरी इलाकों में जहां वो सट्टे की दुकानें चलती थी, लोग खिलवाते थे सट्टा, वहां थोड़ा असर कर सकता है, लेकिन इतना असर कर जाए कि चुनाव का परिणाम बदल दे, मुझे ऐसा नहीं लगता। और ठीक वही स्थिति मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का काम, भारतीय जनता पार्टी का कैडर, वो खूब अच्छे से काम कर रहा है। और एक बड़ी अच्छी चीज हो गई, जाने अनजाने भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही फ्रीबीज अनाउंसमेंट में कोई कमी नहीं की है। तो इसको कहते हैं ना कि एक दूसरे से मिलके सब कट कुट गया, खत्म हो गया। अब अपने असली मुद्दों पर जनता वोट करेगी, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर का दिया जा रहा है। भैया तुम 1 रुपया दोगे, हम भी 1.25 रुपया लिए खड़े हुए हैं। तो जनता को पता है ये चुनावी वादे है, डिलीवरी कहां है उस पर चुनाव हो रहा है। और उसी पर मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बहुत बेहतर स्थिति में। ओके, सो डिलीवरी पे अगर वोट पड़ रहा है, वी आर व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर द नेक्स्ट 40 मिनट्स ओवर हियर, वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट सम ऑफ द क्रिटिकल सीट्स एंड व्हाई दे मैटर एंड व्हिच वे दे आर गोइंग. वी आर गोइंग टू स्टिक आवर नेक आउट. Shazia Elmi, Lokesh Jindal, Sumaya Rana and Maluk Nagar, we are going to stick our necks out here and tell what our gut and what our sources are indicating. Let's start with Budhni. Now Budhni is the seat which has been held by Shivraj Singh Chauhan for a very long time now. He seems in a very comfortable position. He has said कि मैं बस एक बार आया हूं यहां पर, अब मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, यहां बुधनी की जनता लड़ेगी. He today morning before voting came back to Budhni, did puja along with Sadhana Singh. He is up here against Vikram Mastal Sharma. He, by the way, Vikram Mastal is a young man. He is just in his early 40s or late 30s. He plays Hanuman in the serial Ramayan. So he has been fielded here by the Congress, one of the young people, and Swami Vairagyanand has been fielded by the Samajwadi Party. Opening comments, Harshvardhan जी, यहां पर आपको लगता है कि कोई भी फाइट है? पिछली बार जब यहां से जो पिछला चुनाव था, इसमें मार्जिन शिवराज सिंह चौहान का करीब 55,000, 60,000 वोटों का था. Has that changed at all?
नहीं नहीं पद्मजा, कतई नहीं। और देखिए कई बार हम ये 1984 नहीं है कि हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में अमिताभ बच्चन लड़ गए। विक्रम मस्ताल को जानता कौन है? और आप इसी से संकट समझिए कांग्रेस का कि उनके पास प्रत्याशी तक नहीं। और ये जो सपा वाले प्रत्याशी हैं, ये भी भाई साहब गए हुए थे कांग्रेस के पास टिकट मांगने, जब मस्ताल को टिकट दे दिया तो ये सपा से लड़ गए। कहीं कोई मुकाबला नहीं है, बहुत जबरदस्त मार्जिन से शिवराज सिंह चौहान जीतेंगे। विनोद जी, मैं सहमत हूं हर्षवर्धन जी की बात से। लास्ट टाइम अरुण यादव जो लड़े थे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो ज्यादा स्ट्रांग कैंडिडेट थे और उनका जमीन पर काम भी था, उनका कास्ट बैलेंस भी वहां पर था, लेकिन उसके बावजूद 55,000 से अगर शिवराज सिंह चौहान जीते पिछला चुनाव 2018 में, तो इस बार दोनों कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप देखिए ये इस तरह का चुनाव है जैसे अखिलेश यादव जब लड़े थे आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव और उनके खिलाफ निरोगा को लड़ाया गया था, अखिलेश जी बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी जीते। उसके बाद जब उनकी सीट खाली हुई फिर वो दोबारा निरहुआ जीते उपचुनाव। तो जब बड़े नेता और खासकर जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो आमतौर पर इस कॉन्फिडेंस के साथ लड़ते हैं। और दूसरा जो वोटर होता है उसको मालूम है ना कि शिवराज सिंह चौहान को जिताने का क्या फायदा है और मस्तान साहब को जिताने का क्या फायदा है। अब मस्तान साहब अगर जीत भी जाए तो वो क्या बनेंगे अगर सरकार बनती है कांग्रेस की, और शिवराज सिंह चौहान अगर जीत गए तो बीजेपी की सरकार बने न बने शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। तो इसलिए ये वोटर भी इस बात को समझता है बहुत बेहतर तरीके से, और मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान की जीत में और लीड में कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है। Let me quickly tell you a bit about Budni. It has approximately a 14.34% population of scheduled caste. The scheduled tribe voters are also very sizable here. They are about 24%. आपको याद होगा that बीच में in सिद्धि there was this controversy जहां एक ट्राइबल आदमी के ऊपर there was a urination video. शिवराज जी ने खुद जा करके उसके पैर धोए थे because उनकी खुद की constituency में there's a 25% tribal population. Muslim voters are also actually higher than the state average. They are about 5.2% in Budni. Now let's talk about Chhindwara. In Chhindwara, you have got Kamal Nath who is up against Bunty Sahu. हनुमान भक्त एक तरफ बुधनी से हनुमान जो है रामायण सीरियल में वो खड़े हैं, दूसरी तरफ कमल नाथ हैं छिंदवाड़ा में, ही इज अ हनुमान भक्त हिमसेल्फ. 102 feet tall Hanuman idol has been introduced, has been installed there by him. He had hosted plenty of Babas. Dhirendra Shastri was hosted by him. Pandit Pradeep Mishra was hosted by him. Opening comments I want to take from you. Maluk Nagar, यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है जहां पर जो मुख्यमंत्री है वो भी प्रचंड हिंदू है, जो उनका चैलेंजर है वो भी प्रचंड हिंदू है. I want to ask you about the role of the smaller parties. BSP has a very sizable presence or used to have a sizable presence at least in the बुंदेलखंड area. जो भिंड मुरैना बुंदेलखंड वहां पर BSP का बहुत sizable presence हुआ करता था. क्या इस इलेक्शन में आपको लगता है that you will be able to hold on to it, या अब बस स्ट्रेट बाइपोलर कॉन्टेस्ट है? देखिए, आपकी जानकारी में ला रहा हूं और आपके चैनल से सब देखने वालों के कि 7 MLA थे हमारे पिछली बार भी और कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे. कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था, कांग्रेस की सरकार थी. ये 7 के 7 तोड़ के ले गए और उसका इंपैक्ट इतना हुआ है कि पूरे मध्य प्रदेश में SC और ST वो पूरी तरह नाराज है कि कांग्रेस ने BSP के लोगों को क्यों तोड़ा, क्यों डाका डाला, क्यों चुराए, क्यों उन्हें जबरदस्ती हम बगैर शर्त के सपोर्ट कर रहे थे, तो इनको वो नुकसान मिलेगा. और जहां तक बात पिछड़ों की है, ये पिछड़े 51% दिखा रहे हैं. 51% नहीं है, करीब 56-57% है मध्य प्रदेश में. लेकिन कांग्रेस जो राग अलाप रही है, फायदा कांग्रेस को भी नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि 65-68 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया. और जो 2004 और 2014 के बीच में जो महिला आरक्षण बिल आया था वो इसीलिए रुका क्योंकि पिछड़ों के लिए उसमें जो बात लगाई थी तो पेंडिंग डल गया. इन्होंने सरकार पूरी चलाई और वो प्रस्ताव पास नहीं करा, तो लोग सब समझ रहे हैं. जहां तक बीजेपी की बात है, वो माननीय प्रधानमंत्री सदन में कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित बनाए, तो उसका इंपैक्ट अच्छा जा रहा था. पर पता नहीं पिछले दिनों में क्या कुछ कैसे हुआ, तो जब बात पिछड़ों की
की आई तो हम सब देश के लोग, गरीब लोग हैं, सब भारतीय लोग हैं, तो फायदा पूरी तरह वहां भी नहीं मिलने जा रहा है। और पिछड़ों में हलचल जरूर है, पिछले जागरूक जरूर हुए हैं, और पिछड़ों में आज एक सोच बनी है कि हमारे हितों का ख्याल कौन रख रहा है। मुझे ये लगता है कि हमारे साथ एमएलए पहले भी थे, दलित जो नाराज हैं कांग्रेस से भी, जो पिछड़े, वो मैं लेट मी फर्स्ट फिनिश प्लीज। तो वो वोट पिछड़ों का, दलितों का हमें मिलने वाला है, और हमारे साथ के बजाय बहुत ज्यादा सीटें एमएलए की आएंगी, और सरकार हमारे बगैर बन नहीं सकती, मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो। किसकी बनेगी? पर आपके साथ से तो बनेगी, बट बनेगी किसकी? राजस्थान में भी 6 हमारे डाका डाल के तोड़ के ले गए। वो जो लाल डायरी निकली, वो जिन निकला, वो हमारी पार्टी का ही था। तो वहां भी पिछड़ों को आगे चेहरा रख करके सचिन पायलट, जिनमें जाट गुजर यादव पाल सैनिक सब, सुनाल लोहार कुमार, तमाम पीढ़ी जाती हैं, वो सब लोग नाराज हैं। वहां भी वो वोट नहीं दे रहे हैं कांग्रेस को, तो वहां भी जो वो हमें मिल रहा है, और बीजेपी से भी जो लोग पिछले दिनों कुछ नाराज रहे, वो वोट भी हमें मिल रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीएसपी इस स्थिति में रहेगी कि पिछली बार हमारे एक जगह 7 थे, एक जगह 6 थे, अब की बार दोनों जगह हमारे एमएलए बढ़ के आ रहे हैं, और हमारे बगैर सरकार कोई सी प्रदेश में किसी की नहीं बनेगी। चलिए, समझदार को इशारा ही काफी है। आपने जो डायरेक्ट सवाल उसका जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने धोखा दिया है बसपा को, आपके विधायक तोड़ करके ले गए। आप सहायता राशि तो देंगे किसी पार्टी को, किसको देंगे ये जाहिर हो ही गया है। आई वांट टू पॉइंट आउट अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हियर, शाजिया इल्मी, दैट छिंदवाड़ा वेयर का जो गठबंधन है, जो इंडिया में जो समाजवादी पार्टी है, हमारे यहाँ पे उसके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और जो 6.5 करोड़ के वोट उन्हें यूपी में मिले, उनको अखिलेश वखिलेश कह के साइड कर दिया। कांग्रेस पे अपने लोग समझ नहीं रहे। जो इंडिया गठबंधन, हम तो उसके मेंबर नहीं थे, पर वो भी टूट जाएगा 2024 से पहले। मध्य प्रदेश से साफ हो गया, आरएलडी को प्रॉपर इज्जत राजस्थान में नहीं दी, वहां भी टूट जाएगा। और उत्तर प्रदेश में आरएलडी के बगैर, एसपी के बगैर, बीएसपी के बगैर कोई रास्ता खुलने वाला नहीं है किसी का भी। सपने देख रहे हैं सब। Okay, so already first talking about the betrayal of the Congress, second talking about how the Samajwadi Party has been treated poorly by the Congress. Like I said, the indications are enough. Shazia Ilmi in Chhindwara, where from the Lok Sabha, Kamal Nath has been unchallenged. It actually has a large population of women voters, more women than men. So it's not as if all women just gravitate towards the BJP. When Chhindwara women are all voting for Kamal Nath, why won't Madhya Pradesh women also vote for Kamal Nath or the Congress? Oh, there's a big difference. And I think where Shivraj ji goes and his image goes, and how he's endeared himself to the masses, to the people, particularly to women. And this I've seen in play in Madhya Pradesh. It is a very strong bond, whether it's Ladli Behna scheme or others. But the fact of the matter is, I was hearing very intently to all our former speakers, those who spoke before me. And, what were the results? What was it like 2018? 41%, 41%, 1 lakh more votes for BJP, but it did not translate into seats, and we were 2 seats short. A huge and a lot of interplay and importance being given to other parties. I see that changing. I actually see the vote shares of BJP definitely going up, and of Congress, and I think the importance of other parties not keeping up. This is what I see happening, because it's very fiercely contested bipolar match. Now the entire thing of cutting through the caste equations, we can go into Budni separately and Chhindwara separately, but the fact is the connect Shivraj ji has is amazing, particularly with the women voters. But you just look at sheer numbers of where Madhya Pradesh was. And we're looking at almost 1 crore and 40 lakh people being lifted out of poverty. 1 करोड़ 40 लाख लोग बाकायदा गरीबी से निकाले गए हैं। एक जो फ्री राशन की बात सब हम जानते ही हैं। अब आप देखेंगे कि 30 लाख लोगों को अब तक फ्री इलाज मिला है आयुष्मान भारत की ओर से। तो केंद्रीय स्कीमें थी, लेकिन उनका जिस तरह से क्रियान्वयन हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, वो बहुत शानदार तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ है। आप वाटर कनेक्शन को देखिए, 64 लाख घरों में आया है कनेक्शन। तो ये बहुत बड़े फिगर्स हो जाते हैं। अगर कोई भी किसानों की बात कर रहा था, तो किसान सम्मान निधि तो है ही वहां पे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर लाभ हुआ है किसानों का, तो मध्य प्रदेश में ज्यादा हुआ है, क्योंकि जो 6,000 से उनकी राशि बढ़कर 8,000 और 10,000 भी दी गई है, क्योंकि और भी जो स्कीम से आती हैं उसमें। Okay. तो बहुत ही फर्क हम देख रहे हैं। So you are saying that this is not based on
caste, it is going to be the larger group of beneficiaries. Before I come back to you, I know you spoke of a largely bipolar contest, but that's not necessarily the case in Madhya Pradesh, because in Madhya Pradesh you've got many smaller parties who've also thrown their hat in the ring, and some other regional parties who are also in the ring. Let me first quickly take you through some of the other seats that we'll be examining. We're talking about Indore 1. There is a lot of talk about this. Why? Because Kailash Vijayvargiya has been fielded from here. He is up against Sanjay Shukla. So this is as far as the Indore 1 seat is concerned. Kailash Vijayvargiya fielded, but his son Akash Vijayvargiya, who apparently the Prime Minister himself was very upset with after the infamous Balla Kand, where he was seen beating people with a cricket bat, he's been denied a ticket. This is one of the significant seats from the Malwa Nimar region. Also remember, on the penultimate day and his final rally, where did the PM go? He went here. He went to Indore and he drove through 3 Indore constituencies. So this is going to be very, very interesting seat. The next one that we are talking about, by the way, this seat that is represented by Sanjay Shukla at present, it was won by a margin of just about 8,000 votes. The next one we are talking about is Dimni. Narendra Singh Tomar is here up against Ravindra Singh Tomar and Balveer Singh Dandotia of the BSP. This is again one of those seats where the smaller parties are also in the fray. The BSP has been fielded its candidate against Narendra Singh Tomar. Tomar versus Tomar, and BSP is also here. Dimni, incidentally, also saw violence today during the polling that took place. The next seat that we are going to talk about is Siddhi. Siddhi is where a member of parliament, that lady, has been brought in, and she has been fielded from Siddhi. That is also the seat where the infamous urination Kand, if I'm not mistaken, Riti Singh has been fielded here by the BJP from Siddhi, and that is after that entire. Can we move on to Siddhi, please? Riti Pathak. All right. Riti Pathak has been fielded from Siddhi. The visuals that we are seeing right now is of the tribal upon whom the sitting MLA's aide had urinated in Siddhi. He has been denied a ticket, and he, by the way, is now fighting this election as an independent. So let me ask you this, Harshvardhan ji. बात हो रही है बाइपोलर कॉन्टेस्ट की, पर बहुत सारी जो पार्टियां हैं, बीएसपी की तो हमने बात कर ही ली है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, देन देयर इज द गोंडवाना पार्टी, देयर इज द हमार पार्टी, एक ट्राइबल की पार्टी है, एक गोंड ट्राइब की पार्टी है. इनका कितना असर आपको दिख रहा है, या फिर वोटर अब इधर उधर नहीं पड़ना चाहता, सीधे कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं है पद्मजा जी. देखिए, गोंडवाना पार्टी का एक जो आदिवासियों के बीच में थोड़ा प्रभाव है. मुश्किल ये है कि उनका कोई ऐसा नेता नहीं तैयार हो पा रहा है जो कहे कि ठीक है कि ये 30-35 सीटें हैं, इस पे हम मजबूती से लड़ सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को. वो नहीं हो पा रहा है. दूसरी मुश्किल ये हुई कि जो बहुजन समाज पार्टी की एक वहां राजनीति थी, उनका नेतृत्व था, वो भी लगभग खत्म हुआ. और मलूक नागर जी, चूंकि ये तो सभा उभा करके आए हैं वहां, मुझे जानकारी है कि गए थे और इनकी सभा में भी थोड़ा बवाल वगैरह हुआ था, ये बताएंगे. तो वहां एक स्थिति थी जिसको वहां की लीडरशिप अगर करती, शायद वहां का कोई नेता तैयार होता बसपा का, तो वो कुछ कर पाता. इसीलिए बहुत ज्यादा कोई फर्क डाले गए नहीं लगता. लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों पार्टियां 2-2, 3-3 सीटों पर निश्चित तौर पर खेल बिगाड़ भी सकती हैं. 2-2, 3-3 सीटों पर इनकी अच्छी स्थिति रहेगी. अब जो जिसको हम कहते हैं ना कि ज्यादा खेल कौन बिगाड़ेगा, हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि क्या जो बागी हैं वो ज्यादा खेल बिगाड़ेंगे. अब जैसे जो सीधी से रीति पाठक हैं, अब वो सांसद हैं, वो लगातार 2 बार की सांसद हैं, लेकिन केदारनाथ शुक्ला जो विधायक जिनका टिकट काटा गया, वो बड़े ताकतवर रहे. उनका एक सहयोगी जिसको कहा गया कि उसने एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया और जिसकी वजह से ये सब हुआ. अब सवाल है, क्या वो उतना डैमेज कर पाएंगे, क्या उतना डेंट करेंगे? और इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय बहुत बड़े नेता हैं. देखिए, सच बात यह है कि पिछली बार भी अगर कैलाश जी ने जो इंदौर 1 की सीट है ठीक से लड़ाई लड़ी होती भाजपा के लिए, तो संजय शुक्ला उस बार भी हार गए होते. लेकिन अब संजय शुक्ला ने भी वहां अपना बड़ा एकदम दबदबा बना लिया, बड़ा काम वाम किया हुआ. तो कैलाश जी के लिए भी बहुत कठिन सीट है, सीधी भी बहुत कठिन सीट है. इन दोनों सीटों पर इतनी आसानी नहीं होने वाली है. लेकिन हाँ, कैलाश जी चुनाव जीतते दिख रहे, सीधी में अभी मुकाबला फंसा हुआ है. सुमैया राणा, जीतने की कोई उम्मीद है या सिर्फ खेल बिगाड़ने की? नहीं पद्मजा जी, कुछ सीटों पे सीरियसली अगर देखा जाए, क्योंकि मैं वहां पे प्रभारी बना के भेजी गई थी सिरोंज जिले में, मैंने कैंपेनिंग की और जो हालात देखे, मुझे लग रहा था कि
जिस तरीके से पिछड़ों की बात समाजवादी पार्टी करती आई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुस्तकिल पीडीए की बात कर रहे हैं और पिछड़ों के लिए जो संघर्ष जारी है समाजवादी पार्टी में, यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकल के आएगा। और सर, जो कुछ सीटें तो हमारी रिजल्ट आएगा मैम, बट क्या रिजल्ट आएगा? आप मेरे को 4 सीटें बता दीजिए जो आप निकाल लेंगी। मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं दैट इन 2003 द समाजवादी पार्टीज वोट शेयर इन मध्य प्रदेश वाज 3.7%। 2018 में दिस हैड बिकम 1/3, दे केम डाउन टू 1.3%। आज कांग्रेस कह रही है कि आप खेल बिगाड़ने के अलावा, अदर देन बीइंग स्पॉयलर्स, यू आर नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस। आप मुझे 3 सीटें बताइए जो आप निकाल लेंगे। देखिए कांग्रेस की बात मत करिए। कांग्रेस ने अगर खेल बिगाड़ने की बात जहां तक की जाए तो कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है खेल बिगाड़ने की। खेल बनाना था तो कांग्रेस वहां पे एक ऐसी स्थिति में थी कि खेल बन भी सकता था। तो जो बेवकूफ बनाने की राजनीति कांग्रेस पिछले दिनों से कर रही है और कांग्रेस का ये पुराना एक रूप रहा है कि कहीं पर भी अगर उसको ये लगता है कि थोड़ी सी भी ताकत मिलने वाली है या मिली है तो उसका हमेशा दुरुपयोग किया, और वो ये घमंड कांग्रेस को ले डूबता है। क्योंकि आप जब जहां पर हैं, जिस स्थिति में हैं, मुझे नहीं लगता कि वहां पर आप इस और खासकर जब एक गठबंधन हो चुका था और ये दल मिल चुके थे, उस वक्त में कांग्रेस का जो रवैया था वो बहुत ही ज्यादा नकारात्मक था और बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है। अगर 2-3 सीटें आपको मिल गई, पुश कम्स टू शव, आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, समाजवादी पार्टी? चुनाव में और मैंने लोगों से बात की और देखा तो मुझे ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के लिए कोई बहुत अच्छे रिव्यूज आए हों। वहां पर लोग परेशान हैं और यकीनी तौर पर एक नई ऊर्जा का इंतजार। ओके, नई ऊर्जा। एक अच्छा कैंपेन किया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, जो वहां पर वक्त दिया, उसका यकीनी तौर पर रिजल्ट निकल करके सामने आएगा। ओके मैडम, मैं आपसे एक बार और पूछना चाहती हूँ 2 सवाल डायरेक्टली, बिकॉज देन आई वांट टू गो ऑन टू द नेक्स्ट सीट्स। आई थिंक शाजिया अलमी वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू यू एज वेल। शाजिया अलमी, वेरी क्विकली, देन आई वांट टू गो ऑन टू द नेक्स्ट सीट्स। नहीं, मैं वही कहना चाह रही थी आपसे। देखिए, एक वो है ना पुराना गाना, जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। तो वही हालात कुछ हो रही है। आप देखिए, चाहे सपा की बात हो या बसपा की, तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है और कांग्रेस की असलियत भी सामने है। अब जाहिर सी बात है, सपा बीजेपी के साथ तो कभी जा नहीं सकती, लेकिन उसका क्या हशर हो रहा है। एक संभावित एक अलायंस जिसकी बातें हो रही हैं, मोहब्बत की दुकान जिसको कहा जा रहा है, उसमें ऑलरेडी जो है उसकी परतें खुलती हुई दिख रही हैं आपको सामने। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि पहला एक इलेक्शन होता है, बड़ी बड़ी बातें होती है, सब इकट्ठा होते हैं, लेकिन जैसे ही पहला इलेक्शन होता है और उसकी सुगबगाहट होती है कि कांग्रेस जो है रेस में है, कांग्रेस का घमंड देखिए, और सारा की पूरा काम मेहनत जो अलायंस पार्टनर्स को लाने में की थी, इन सब लोगों ने की थी। अब देखिए उसका हशर। तो ये हशर आप सुन रहे हैं उसका पहले से, और यही अपने आप में एक बहुत बड़ी अलामत है मेरे हिसाब से। Okay, so these you take as indicators. Who knows, 3 दिसंबर के बाद 3 सीटें, अगर वो 3 स्टेट जीत गए, सब फिर खुश हो जाएंगे, सब दोस्त फिर से बन जाएंगे. Things change very quickly in politics. Let me go on to the next seat, and it's a very interesting seat because this is a bellwether seat. We are talking about Nivas. Now, Nivas is a seat, जो भी ये सीट जीतता है सरकार उसी की बनती है. So we've had Faggan Singh Kulaste being fielded this time around from Nivas against Dr. Ashok Marskole, who's the sitting MLA of the Congress. The interesting story is that Faggan Singh Kulaste's brother, Ram Pyare Kulaste, had been winning this seat. He's won this 3 times, and each time that Ram Pyare Kulaste won this seat, the BJP formed the government in the state. But in 2019, when Dr. Ashok Marskole, he got this seat from Kulaste, that year the Congress formed the government and Kamal Nath became the chief minister. So for 50 years, Harshvardhan ji, 50 years, this seat has been a bellwether seat. अगर इस बार फग्गन सिंह कुलस्ते ने ये सीट निकाल ली, तो फिर शिवराज जी जो हैं पटाखे फोड़ रहे होंगे. The question though is कि उनको क्यों लड़ाया गया? उनके भाई को हटा के फग्गन सिंह कुलस्ते को सेंटर से क्यों भेजा गया है? पद्मजा, फग्गन सिंह कुलस्ते की सीट, दिमनी की सीट और जबलपुर की सीट, ये तीनों सीटें बहुत मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए. ये आसान सीटें नहीं दी गई हैं. न तो राकेश सिंह के पास आसान सीट है, न तो फग्गन सिंह कुलस्ते के पास, और वहीं नरेंद्र सिंह तोमर के पास.
और तोमर जी के बेटे के जो वीडियो आए हैं वो और कहीं असर करे न करे, लेकिन विधानसभा में जरूर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं करते हैं। अब यहां एक बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि फग्गन सिंह कुलस्ते उसके आदिवासियों के बड़े नेता हैं, और दूसरी तरफ से कोई ऐसा बड़ा नेता प्रोजेक्ट करने के लिए न तो कांग्रेस पार्टी के पास है न किसी और पार्टी के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बेल्ट में, आपको याद होगा आज भी उन्होंने पत्रकारों के दीपावली मिलन कार्यक्रम में भी उसका जिक्र किया, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और लखपति दीदी की वो बात करते हैं, जब वो कूनो चीते छोड़े जा रहे थे उस वक्त उन्होंने बताया था। दरअसल भाजपा ने उस वर्ग के लिए काम बहुत किया, उनसे कनेक्ट बहुत किया है, और उसके चेहरे के तौर पर फग्गन सिंह कुलस्ते को वहां उतारा है। लड़ाई थोड़ी कड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि फग्गन सिंह कुलस्ते वहां विनिंग एज की तरफ है, वो जीतते हुए दिख रहे हैं, बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि ये सीट तय करेगी, तो मुझे लगता है सीट तो तय कर चुकी है। तो आप कह रहे हैं कि फग्गन सिंह कुलस्ते जीत रहे हैं यहाँ पे फॉर श्योर? मुझे ऐसा लगता है। विनोद जी, देखिए, मैं जो सीट जिसका जिक्र किया निवास, उसके पहले मैं 2 सीटों के बारे में और बात करना चाहूंगा। एक तो इंदौर की सीट जहां से कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं, इंदौर 1। इंदौर वाली बहुत दिलचस्प चीज ये है कि संजय शुक्ला के पिताजी जो थे वो वहां के बड़े प्रभावशाली नेता हुआ करते थे। कैलाश विजयवर्गीय एक तरह से उनके शिष्य थे जब शुरू राजनीति शुरू की, और जब संजय शुक्ला आए राजनीति में तो कैलाश विजयवर्गीय के शिष्य बने। तो और उसके बाद आज वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कॉम्बिनेशन कि गुरुपुत्र और गुरु बाबा वो मतलब आपस में लड़ रहे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय फंसे हुए हैं। जो रिपोर्ट है इतनी आसानी से, भले हर्षवर्धन जी के बाद रिपोर्ट हो कि विनिंग साइड है, मुझे लगता है पूरा चुनाव फंसा हुआ है इंदौर का। क्यों? कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला के बीच में अच्छा फंसा हुआ है चुनाव। और जो वहां बीजेपी की अपनी गुटबाजी है, भाई ताई बैठी हुई है वहां, ताई को निपटाने के लिए सुमित्रा महाजन, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, फॉर्मर लोकसभा स्पीकर, कैलाश जी ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, तो सुमित्रा महाजन और कैलाश ताई विजयवर्गीय हैड अ हिस्टोरिकल राइवलरी। लोग तो एक्टिव है ना, तो बहुत सारे स्थानीय समीकरण काम कर रहे हैं। नंबर 1 उस सीट पर, सीधी सीट पर केदार शुक्ला जो है निश्चित रूप से बीजेपी का काम बिगाड़ सकते हैं, खराब करेंगे। एंड वहां पे ब्राह्मण पॉपुलेशन हाई है, और वहां ब्राह्मणों में रिएक्शन हुआ था जब शिवराज सिंह चौहान ने उस व्यक्ति के पैर धोए और वो फोटो वायरल हुआ, बाकायदा जुलूस निकला था वहां पर। और जब गिराया गया उसका घर का कोना गिराया गया तो भी जुलूस निकला, उससे ज्यादा रिएक्शन हुआ था, ज्यादा रिएक्शन पूरे विंध्य क्षेत्र में हुए, अपर कास्ट में। अब तीसरी जो है ये फग्गन सिंह कुलस्ते वाली जो सीट है, यहां भी बहुत कांटे की टक्कर है। फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी नेता है, लेकिन कांग्रेस में भी कांतिलाल भूरिया आदिवासी नेता है। वो फग्गन सिंह कुलस्ते से ज्यादा कम नेता नहीं है, बल्कि बड़े नेता है स्थानीय स्तर पर राजकीय। कांतिलाल भूरिया और उनके बेटे वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और कांतिलाल भूरिया बाकायदा उस क्षेत्र में घूमे हैं। तो वो सीट भी ठीक है फग्गन सिंह कुलस्ते। और फग्गन सिंह कुलस्ते वो हैं जिन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, पार्टी तय करेगी कि बनाएगी ना बनाए, आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। कांतिलाल भूरिया के बेटे लड़ रहे हैं, बेटे लड़ रहे हैं, इस बार बेटे प्रचार कर रहे हैं। उनके बेटे को टिकट दिया गया उनकी सीट से। हर्षवर्धन जी, इसका कितना प्रभाव होगा? एंड दीज आर मेनी स्मॉल फैक्टर्स व्हिच पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन। फॉर एग्जांपल, यस, आई रिमेंबर कि जब उनका घर गिराया गया था, जो सिद्धि यूरिनेशन कांड का जो अक्यूज था, ही इज एन अपर कास्ट हिमसेल्फ, प्रवेश शुक्ला, उनका घर गिराया गया। उनके घर वालों ने कहा कि भाई हमारे को क्यों बेघर कर रहे हो, हमने क्या गलती की है, उस आदमी को आप जेल में डाल दो। आपको लगता है कि अपर कास्ट बैकलैश होगा? एंड अपर कास्ट इज इंपॉर्टेंट, there's about 13% upper caste and a concentrated upper caste population in मध्य भारत, in विंध्या, ये जो एरिया बीजेपी के प्रभाव क्षेत्र हैं, वहां पे अपर कास्ट ब्राह्मण पॉपुलेशन स्ट्रांग है। इसका बैकलैश होगा? नहीं, देखिए पद्मजा, जो विंध्य की राजनीति को जानते हैं, वहां ब्राह्मण डोमिनेशन है राजनीति में, लेकिन उसका एक फ्लिप साइड भी है, और वो ये है कि इस क्षेत्र में ही ये जो दूसरी पार्टियां हैं वो अपनी ताकत लगा रही, वो वहां पर जाकर खड़ी हो रही। अब कमाल की बात यह है कि वो जो नारायण त्रिपाठी मैहर से विधायक थे, उन्होंने अपनी एक विंध्य जनता पार्टी बना ली है, उन्होंने भी कई टिकट बांटे खड़े किए। अब इस तरह से देखें तो एक तरह से लगता है कि चाहे इतने वोट जाएंगे तो क्या सबके सब चले जाएंगे? तो उसका दूसरा जवाब यह है कि 2018 में सवर्णों की नाराजगी हुई थी शिवराज सिंह चौहान के एक बयान से। जो सवर्णों का एक सरकारी कर्मचारियों का संगठन है सपाक्स, उसने बाकायदा भूमिका निभाई थी, और जो सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी थी उसमें बड़ी भूमिका उसकी थी। वो संगठन आज शिवराज सिंह चौहान के साथ है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई उस घटना के बाद उनकी नाराजगी दूर करने के लिए काम करती है, और जिस तरह से कांग्रेस ने उसको तमाशा
बनाने की कोशिश की, उसका बड़ा वहां रिएक्शन हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब शिवराज सिंह चौहान ने उस आदिवासी को अपने घर पर बुलाया और उसके पैर धुले, उसके बाद कुछ लोग पहुंच गए कांग्रेस के नेता उनके घर, लेकिन पता चला कि वो जहां पहुंचे थे वो गलत आदमी के पहचान के साथ चले गए थे और उसको लेकर बहुत प्रतिक्रिया हुई थी। अब सवाल यह है कि क्या उसका इतना असर हो जाएगा कि एकदम से सीट बदल जाएगी? मेरा मानना है कि उससे बहुत परिणाम नहीं बदलेगा। लेकिन हां, केदारनाथ शुक्ला है, नारायण त्रिपाठी हैं, या ऐसे जो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में थे और अभी गए हैं, वो जरूर कुछ नुकसान कर सकते हैं। आदिवासियों के बारे में एक चीज बता दूं, देखिए वहां दो पार्टियां और हैं, गोंडवाना पार्टी और एक जायस, ये आदिवासियों की पार्टियां हैं। जायस का कांग्रेस के साथ गठबंधन है, गोंडवाना पार्टी और बीएसपी का गठबंधन है। वो मलूक नागर इस बात को भूल गए शायद कि बीएसपी और गोंडवाना पार्टी का गठबंधन है। अब ये इनका जो है क्या असर पड़ेगा, और जो ये तीसरी चौथी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, गोंडवाना पार्टी, इन्होंने जिन जिन पार्टियों के बागी को टिकट दिया है, मान लीजिए अगर एसपी से कोई बीजेपी का बागी लड़ रहा है तो बीजेपी का नुकसान होगा, अगर कांग्रेस का बागी लड़ रहा है तो कांग्रेस का नुकसान होगा, क्योंकि इन पार्टियों की अपनी हैसियत इतनी नहीं है कि वो जीता, वो जो प्रत्याशी है उसका वोट जो है, वो जो वोट लेके आएगा वो असर डालेगा। तो ये भी हम लोगों को देखना, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस सीट पर इन तीसरी पार्टियों ने किस पार्टी के बागी को टिकट दिया है। Okay, now I'm going to take you through the 5 key factors which are going to influence the results in Madhya Pradesh. These are the 5 main factors that we have shortlisted. The number 1 factor, and everyone has talked about it for the right reason. Number 1 factor is 47.8% women voters. From 1962 to 2018, women's turnout has increased by 27%. In Madhya Pradesh, it has gone up sharply. In many seats, more women come out than actually men to vote. Ladli Behna scheme among the biggest BJP poll planks. The last day after, just before the polling was to take place, कल शिवराज जी कहाँ गए? वो महिलाओं के बीच में थे, उन्होंने महिलाओं के बीच में बैठ के खाना खाया, because his focus is very clear. I want the women to vote for me. The second thing that will matter, we've talked about the women. The second thing that is going to matter is going to be the 21% tribal voters. 47 seats are reserved for the scheduled tribes and 6 are full districts which have got tribal domination. So you've got 47 seats which are tribal dominated. 2018 BJP won only 16 of these scheduled tribe seats and the Congress had 130. They want to continue. Tribal domination is huge for the Congress. Remember, there is a very large tribal population in the Mahakaushal region, which is the Gad of Kamal Nath. So that is what they are going to focus on again. The tribal seat should come to us. Over 50% OBC vote bank believed to be the BJP's core vote base. BJP for good reason has said again and again, हमारे तो प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, हमारे इतने सारे मंत्री सेंटर में ओबीसी हैं, हमने इतनी सारी महिलाओं को इस तरीके से ओबीसी जो हैं उनको आगे बढ़ाया है. So they have been very clear that we are going to reach out to the OBC. So that is the third factor. We have talked about Mahila, we have talked about the tribals, we have talked about the OBCs, and then of course you have got the issue of Jyotiraditya Scindia. He has been told very clearly, listen, you have 34 seats, if I'm not mistaken, in his area, which is right at the top of Madhya Pradesh, close to the UP border. And he's been told, Gwalior, Bhind, Morena, 34-36 seats हैं, आपको 36 सीटें निकालिए. Can Jyotiraditya Scindia power the BJP? So these are the main factors that we are talking about. And finally, of course, we've already said, the smaller seats. These, if any party manages to crack, then they are going to get the satta ki chabi. Lokesh Jindal, the Congress has got one thing in common across parties. We spoke to BSP, we spoke to Samajwadi Party. Even parties like the Gondwana Party, they are saying, Congress ko hum bharosa nahi kar sakte because Congress dagabazi karti hai. Do you think that that's a mistake? And if it comes to a pinch, and you again have a difference of 5 seats, these parties are not going to support the Congress. Padmaja, we are missing a very important point over here. This year in March, the farmers of Madhya Pradesh, they were forced to sell the wheat below the minimum support price. And even now in the Kharif season, the MSP that the Madhya Pradesh government provided was very low, 2,160 per quintal. Now compare that with Chhattisgarh. Now Chhattisgarh
it gives the highest MSP of around 2,660. If you look at all the election manifesto, MSP, it dominated the election manifesto. Now, this MSP issue is going to be a factor that is going to cause a huge anti-incumbency wave against BJP. And Congress are the favorites because in Chhattisgarh, Congress has shown how the Bhupesh Baghel government, it has the highest MSP price all over India. The farmers are happy. And Madhya Pradesh, which constitutes 70% of the agrarian base, it is going to vote against BJP. Take my point. Okay. Now, this time in elections, Madhya Pradesh is going to witness a huge anti-incumbency wave against the BJP. And one of the major reasons is going to be the MSP. Remember the 2018 elections. Okay, that gives me a good point to go into Chhattisgarh, because MSP, farm loan waiver is a very important issue in both of these states. But Shazia Almi, you want to respond that farmers are going to be wholeheartedly behind the Congress. Yes. And the Congress in its guarantee has said farmers are going to get farm loan waiver, one-time waiver, which you've never given. No, two, three Chhattisgarh में उन्होंने दिया है. So दो तीन चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं. और वीट की जो बात उन्होंने की है, तो MP is the biggest producer of wheat. And I want to just correct my friend लोकेश जी. लोकेश जी, आपने जो अभी आंकड़े दिए हैं बिल्कुल ही गलत हैं. आपको लग रहा है ये ऐसा है क्योंकि दरअसल सबसे ज़्यादा अगर किसानों को फ़ायदा हुआ है बीजेपी शासित राज्यों में भी, तो वो किसानों को हुआ है मध्य प्रदेश के. और अगर हम देखेंगे उसको तफसील से, तो आप देखेंगे कितने 1.5 करोड़ केसेस जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के थे, उसमें ना सिर्फ सेटलमेंट हुआ है, बल्कि सबसे ज़्यादा पैसे किसान सम्मान निधि में दिए गए हैं किसानों को. और आपने बात की एमएसपी की, छत्तीसगढ़ के मुकाबले आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कई स्टेट्स में देखेंगे तो एक वक्त में जब आपने ज़्यादा एमएसपी दी थी, हमने लगातार, अगर आप उसके एवरेज देखेंगे तो मध्य प्रदेश के किसानों को एवरेज तौर पर लगातार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए था उसके हिसाब से ही मिला है. और उसके वजह से बहुत ही इजाफा हुआ है. 3% जो थी एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ, वो 18% हो गई है. तो दरअसल बहुत ही ज्यादा. पर आई वांट टू ब्रिंग अटेंशन, लास्ट few points I wanted to make, just because they're important. Just let's look at some of the factors. What are the few factors that should be worrying Congress in Madhya Pradesh? They've been going on about OBCs, SC, STs. They're definitely not getting that. And the fact of the matter is, those are findings that are there for everybody to see. But the upper caste support, if you see, you will be surprised to know that in 2013, 59% of upper caste voters voted for BJP. And that trend has continued in 2018. That doesn't seem to be letting up. Similarly, if you see SC, STs and OBCs, you will realize that BJP is on a very, very strong wicket over there. And Madhya Pradesh is not a state given to caste polarization at all. So I think some of the batting that has been done in Madhya Pradesh by the Congress has really been done not on their pitch. Okay. Because clearly those results are going in favor of BJP all the way. All right, let me now take you to Chhattisgarh. Of course, the first 2 seats are the ones that belong to the biggest leaders from here. Now, this particular seat is very interesting. Patan is the traditional seat of Bhupesh Baghel. But this time, he has his own nephew, his Bhatija. Chacha Bhatija fight. So his Bhatija is up against him, up against Bhupesh Baghel here. This comes in the Durg district. But this is not just about 2 Baghels facing off. There is also a third fight here between Amit Jogi. This, remember, is the first election where Ajit Jogi is not present. So the Janta Congress Chhattisgarh is pretty much dependent on Amit Jogi. Harshvardhan ji, आपको लगता है कि Amit Jogi कुछ भी डेंट कर पाएंगे? And why has he chosen to fight against the chief minister himself from Patan? पद्मजा, मुख्यमंत्री की सीट बहुत, जिसको हम कहें कि क्रूशियल तरीके से फंस गई है. भूपेश बघेल पहले भी एक बार हार चुके हैं. ये अलग बात है कि अभी वो मुख्यमंत्री हैं, और मैं ये मानता हूं कि भूपेश बघेल की सरकार लगभग वहां रिपीट होने जा रही. भारतीय जनता पार्टी ने बहुत देर से वहां लड़ाई शुरू की, लेकिन खुद अपनी सीट पर वो फंसे हुए हैं.
और उनके भतीजे विजय बघेल जो सांसद भी हैं दुर्ग से, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ अजीत जोगी की डेंट करने की क्षमता कितनी, उनके बेटे की कितनी होगी, वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन वहां लोगों के मन में एक बात बार बार है, और जिसको शायद चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी उस तरह से नहीं कह पाई, सिर्फ अमित शाह गए तो कह पाए। साहू समाज के खिलाफ एक अजीब किस्म की, कहें कि दुर्भावना वाली राजनीति कांग्रेस ने वहां की। अब वो राजनीति क्या उनको नुकसान देगी? और उनका अपना जो बघेल समाज, जिसको हम कुर्मी समाज कहते हैं, वो उनका भतीजा कुछ काट पाएगा, कुछ डेंट कर पाएगा? ये दो फैक्टर हैं जिस पर पूरा चुनाव उस विधानसभा में हो रहा है। आप क्यों कहते हैं कि दुर्भावना है साहू समाज के खिलाफ? ऑल्सो बीजेपी ने अपना प्रेसिडेंट बदला है, उन्होंने साहू समाज से अपना नया प्रेसिडेंट चुना है। आपने क्यों दुर्भावना बोला साहू समाज के खिलाफ? छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति अगर आप देखें, क्योंकि हम लोग यहां से देखते हैं तो लगता है कि ओबीसी लीडरशिप है, लेकिन वहां ओबीसी में भी दो वर्ग है, एक कुर्मी वर्ग है, दूसरा साहू वर्ग है। साहू परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा, लेकिन 2018 के चुनाव में साहू समाज ने बड़ी संख्या में कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। लेकिन पूरे 5 वर्ष उनको यह लगा कि हमारा, जिसको हम जैसे हम उत्तर प्रदेश की भाषा में कहें तो एक समय में अखिलेश यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी, उनके अलावा किसी को थाने से लेकर कोर्ट कचहरी से लेकर जो दबाव वाली राजनीति थी, जिसको हम लोग यहां दिल्ली से बैठकर नहीं समझ पाते, जो रोज उनको थाने में जाना है, फोन कराना है, गांव का मुखिया है, पंच है, वो वाली राजनीति में साहू समाज को बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि सरकार उनके साथ नहीं खड़ी है, दूसरे पक्ष में खड़ी है। विनोद जी, देखिए, ये बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, बिल्कुल उसमें दम है। साहू समाज और वर्सेस कुर्मी समाज के बीच में वहां एक राजनीतिक प्रतियोगिता रही है, रहती रही है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब बड़ा फलक होता है तो कई बार फिर ये चीजें सामने नहीं आती। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में लें, योगी जी को लेकर के तमाम तरह के आरोप लगते रहे कि साहब ब्राह्मण नाराज है, ये नाराज है, इतने ब्राह्मणों का वो हो गया। उनके तो जितिन प्रसाद जी तो मंत्री हैं, वो तो कांग्रेस में थे तो पूरी लिस्टें निकाली थी उन्होंने। खैर, वो ब्राह्मण सम्मेलन भी किया, ब्राह्मण सम्मेलन किया था। और विकास दुबे का मर्डर के बाद तो ऐसा लग गया था कि जैसे पूरा ब्राह्मण बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन ब्राह्मण नहीं गए। तो इसी तरह से ताम्रध्वज साहू वहां गृह मंत्री हैं, वो बड़ा फेस है साहू समाज का, साहू नेताओं का, और कांग्रेस पार्टी उनको बड़ी भूमिका कभी भी दे सकती है। ये एक मैसेज है। एक तो ये है। दूसरा, अमित जोगी का जो आपने कहा कि अमित जोगी पार्टी से क्यों लड़ रहे हैं, मैं उसको थोड़ा रहस्योद्घाटन करना चाहता हूं। अमित जोगी के पिता अजीत जोगी जी हम सब जानते हैं, वो कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनके निधन के बाद जो पार्टी छोड़ के चले गए, वो लंबी कहानी अलग है। रेणु जोगी जो इनकी मदर हैं, वो एमएलए थी, उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी जब ये अलग पार्टी बनाई थी। बाद में उनको साइडलाइन करने में हमारे भूपेश बघेल जी की बड़ी भूमिका रही और उनको मजबूरी में कांग्रेस छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर सोनिया, चूंकि अजीत जोगी और सोनिया जी के बड़े अच्छे रिश्ते थे, पारिवारिक लोग, तो रेणु जोगी बहुत मानती थी। तो रेणु जोगी दोबारा कांग्रेस में आना चाहती थी, अमित जोगी को लेकर आना चाहती थी, और इस पर सोनिया जी तैयार हुई, जो मुझे सूत्रों से पता लगा। और ये हुआ कि भाई लोकल लीडरशिप से बात की जाए। उसमें जो स्थानीय नेतृत्व था, इंक्लूडिंग भूपेश बघेल, सब ने कहा कि रेणु जी का तो स्वागत है, अमित जोगी नहीं आने चाहिए पार्टी में। तो ये एक व्यक्तिगत जो खुंदक है अमित जोगी की, वो भी ग्रज फाइट है उनका। ये वो तो जीतेंगे नहीं। तो कहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है, हर्षवर्धन जी बहुत बेहतर जानते हैं, कि खाएंगे तो खा तो पाएंगे नहीं, ढरका देंगे। तो वो कि जो भी वोट काट सकेंगे भूपेश बघेल का वो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो चीज बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के लिए है, वही पार्टी ने भूपेश बघेल के लिए इसलिए है। आमतौर पर एक अपवाद है नंदीग्राम का, जो ममता बनर्जी हार गई, वो एक अलग विश्लेषण विषय है। आमतौर पर जब बड़ा नेता लड़ता है, मुख्यमंत्री होता है इनकम्बेंट, और जैसा कि हम सब मान रहे हैं कि लगभग भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार वहां रिपीट होने जा रही है, तो लहर में ही निकल जाती है। ऐसे उस पर लहर में फिर सीट मुख्यमंत्री की निकल जाती है। वोटों का अंतर हो सकता है कम हो जाए, तो हो जाए, फर्क हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन जो हम लोग अब तक का अनुभव रहा है। मलूक जी, आपने तो कैंपेन किया है, बीएसपी उस स्टेट में भी है, किस तरफ हवा लग रही है आपको? जी देखिए, मुझे दो चीजें बिल्कुल साफ लग रही हैं कि कांग्रेस 7 एमएलए हमारी मध्य प्रदेश में तोड़ के ले गए। हम सपोर्ट कर रहे थे, तो दलित SC ST खिलाफ है कि बीएसपी के खिलाफ, दलितों की पार्टी के खिलाफ ऐसा कांग्रेस ने क्यों करा? पिछड़ों के लिए अब कांग्रेस जो मांग कर रही है, सब जानते हैं 65-68 साल में कुछ नहीं करा कांग्रेस ने पिछड़ों के लिए। तो दोनों जो बड़े समुदाय हैं, पिछड़े और दलित, SC ST और OBC, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से पूरी तरह नाराज हैं।
और भाजपा भी अब जो उनके लिए नहीं कर पा रही, जो उम्मीदें थी, उनसे भी नाराज है। उसका सीधा सीधा फायदा हमें मिलेगा। मध्य प्रदेश में हम 7 थे, वहां बड़ी संख्या में आएंगे। राजस्थान में हम 6 थे, जो कांग्रेस तोड़ के ले गई, वहां भी हम बड़ी संख्या में जीत के आएंगे। दोनों प्रदेश में हमारे बगैर ना बीजेपी की सरकार बनेगी, ना कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम ताले की चाबी लेके बीच में आराम से खड़े होंगे, फिर सोचेंगे, फिर कांग्रेस को एहसास दिलाएंगे, तुम सपा की बेइज्जती करते हो, तुम आपकी पार्टी की बेइज्जती करते हो, तुम पे गठबंधन जो बनाया ये संभल नहीं रहा, इसीलिए हम गठबंधन में नहीं थे। अब हम तुम्हें अपनी शर्तों पे बात करेंगे। आप ये बताइए, आप चुनाव इतनी शिद्दत से लड़ते हैं सिर्फ इसके लिए कि आपके सारे एमएलए फिर जाके कांग्रेस के पास बैठ जाते हैं। आप इतनी मेहनत करते क्यों है? प्रचार आप करते हुए ना, भवरे ने खिलाया, फूल फूल को ले गया, राजकुमार वाली सिचुएशन हो जाती है। आप जिता जिता के कैंडिडेट्स लाते हैं, कांग्रेस तोड़ तोड़ के ले जाती है। ये नहीं है, कांग्रेस की फितरत है धोखा देना, पिछड़ों को धोखा देना, दलितों को धोखा देना। और अब ये सो कॉल्ड गठबंधन बना इंडिया, जिसमें समाजवादी पार्टी उसके साथ आई। समाजवादी पार्टी को भी साफ तौर पर कर दिया कि हम धोखेबाज हैं, हम पे विश्वास मत करो, हम पे नेतृत्व नहीं है। इसीलिए हम 3 साल तक अपनी पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं बना पाए थे। हम कंफ्यूज हैं। मलूक जी, विनोद अग्निहोत्री बोल रहा हूं। ये एक सवाल मेरा है, बड़ा मासूम सा प्रश्न है कि एक तो बहुजन समाज पार्टी ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती है कि जो बाद में चुनाव के बाद जो है चले जाते हैं कांग्रेस में। दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी बीएसपी को तोड़ दिया था जब केसरी यादव त्रिपाठी अध्यक्ष थे, हम आपको याद होगा अच्छी तरह से। लेकिन वहां का दलित समाज तो बीजेपी से नाराज नहीं हुआ, वहां भी बीजेपी के साथ है। तो ये जनरल स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, दलित समाज भी तो सोचता है ना कि आप ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हैं जो बीजेपी में चले जाते हैं या कांग्रेस में चले जाते हैं। आप मजबूत कमिटेड अपने कैडर को टिकट दीजिए ना, जो आपके साथ रहे। देखिए, हम अपने मजबूत लोगों को टिकट देते हैं, कैडर के लोगों को टिकट देते हैं, लेकिन पूरे देश में जो तोड़ा ताड़ी चल रही है और जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, कौन किसको तोड़ के किसके साथ ले जाए, तो आप जो हम कमजोरों की, दबे कुचले लोगों की, दलितों की पार्टी हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप कांग्रेस की हिम्मत बढ़ा रहे हैं? इस तरह की हरकत उसने हमारे साथ की है? टेलीविजन पे बैठ करके मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। मैं किसी की हिम्मत नहीं बढ़ा रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। अब तो कांग्रेस छोड़िए, अब तो आरजेडी भी कर रही है। आरजेडी ने एमआईएम को तोड़ दिया बिहार में, उनको पूरा का पूरा चुरा करके ले गए। तो अब तो ये फ्री फॉर ऑल है। समाजवादी पार्टी ने भी तो कई लोगों को तोड़ा है, आपके सुखदेव राजभर और तमाम लोग जो है वो बीएसपी से बीजेपी में। अब की बार दलित जो बहुत परेशान है, जो पिछड़े जो बहुत परेशान है, हमें इतनी संख्या में राजस्थान में और मध्य प्रदेश में सीट जिताएंगे। अब के हमारी टूटा टाटी नहीं होगी और हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। जिसकी चाहेंगे दोनों प्रदेशों में सरकार, उसकी बनेगी, ये पक्की बात है। पर आप वो भी नहीं बता रहे किसकी बनवाएंगे। बट आई वांट टू फोकस ऑन वन मोर इंपॉर्टेंट सीट, कवर्धा. It is in the Durg region. Here Muhammad Akbar is fighting from the Congress. You would have heard a lot about Muhammad Akbar. Why? Because it is about his candidature that Himanta Biswa Sarma, other leaders of the BJP said कि हाँ अकबर औरंगजेब की सरकार, अकबर औरंगजेब की सरकार, इसी को कंप्लेंट भी हो गई है. He is up against Vijay Sharma of the BJP and he is the only Muslim MLA in Chhattisgarh and he is a minister in the Bhupesh Baghel government, the only Muslim minister. By the way, I'm completely out of time. We will continue with this analysis over the next few days as well. Let me also tell you that as far as the Congress and the BJP are concerned, whether it be Rajasthan, whether it be Madhya Pradesh, when it comes to representation of Muslims, the Congress and the BJP are almost the same in number of tickets that they have given to Muslims this time around. Out of time right now, but it has been a fascinating analysis for Chhattisgarh and Madhya Pradesh. We'll do the same for Telangana, Rajasthan in the next few days as well. For now, all gentlemen, Shazia Almi, thank you very much for joining me with your wisdom.